Good morning student. Now I am continue to give you the revision video under the e-learning program of Modern English School Nevada. My dear students, till last video we have discussed about the various climatic conditions which affect means climate of India. Okay. Today students we are going to discuss mechanism of Indian monsoon. Mechanism of Indian monsoon means what students? That how the intensity of monsoon students decrease or increase in India, that we called mechanism of Indian monsoon. For that you have to understand first of all students cooling of लैंड एंड द वाटर सरफेस. देखिए हमने पहले भी आपको बताया था माय डियर स्टूडेंट्स, एयर ब्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, एयर ब्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर. The intensity of monsoon depend upon the low pressure that has been created over the Indian landmass. If there is the extreme heat in the Tibet Plateau or to the northern part of our country, it will comes under the higher low pressure, and due to the high low pressure, it will withdraw the air from the sea that have a moisture and cause a heavy rainfall. तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल द मैकेनिज्म ऑफ मानसून डिपेंड अपॉन कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी सरफेस. स्टूडेंट्स पहला मैकेनिज्म ये हो गया. दूसरा ITCZ. अब देखिए ITCZ क्या है? इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन इज कॉल्ड ITCZ. देखिए स्टूडेंट्स अभी जस्ट हमने आपको बताया कि हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ता है और हमारा इक्वेटर जो है वो हमेशा लो प्रेशर में होता है. हमारा इक्वेटर हमेशा लो प्रेशर में होता है. ठीक है, तो हवा जो पोल की तरफ से बढ़ती है, ठीक है, पोल की तरफ से जो हवा आ रही है वो इक्वेटर के पास आती है ना, तो इक्वेटर क्रॉस करने के बाद राइट घूम जाती है. तो जो हमारा नॉर्थ की तरफ से, नॉर्थ पोल की तरफ से या साउथ पोल की तरफ से जो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट हवाएं आ रही है ना, वो इक्वेटर पार करने के बाद राइट टर्न कर जाता है ड्यू टू कॉरियोलिस फोर्स की वजह से. कॉरियोलिस फोर्स की वजह से. ठीक है, कॉरियोलिस फोर्स क्या है हमने आपको नोट्स में भी बताया था. ए फोर्स विच इज जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. एंड व्हेन दिस एयर स्टूडेंट्स फ्रॉम एयर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एयर कमिंग फ्रॉम द साउथ पोल व्हेन पास टू द इक्वेटर है ना, टर्न टू द राइट, एंड ड्यू टू दैट ए convergence is formed, that is called the trough, and this trough is normally called as a ITCZ. Such trough students are formed during the monsoon in the northern, over the northern plain, when southwest and southeast monsoon make a convergence over the northern plain. Okay, तो दूसरा ITCZ हो गया कि how the trough is formed. If the trough is formed above the 5 degree of latitude, the monsoon climate in India would be better. ओके, तो ये हो गया दूसरा स्टूडेंट, पहला दूसरा अपना ITCZ का. दूसरा स्टूडेंट्स देखिए हमने आपको एसओ बताया था, इलिनो बताया था, ये सभी चीज़ का नोट्स में भी हमने दिया था. ठीक है, सादर्न ओसिलेशन. सादर्न ओसिलेशन क्या है कि डिफरेंस इन द pressure between the Indian and the Pacific Ocean, Indian Ocean and Pacific Ocean. This difference we called SO, Southern Oscillation. ठीक है, and if the pressure students is in negative, will have a better monsoon in India, and if it is positive, it will not have a better monsoon in India. तो एक SO हो गया. SO क्या है? Change in pressure between the Indian and the Pacific Ocean that take place every after 2 or 5 years, 3 or 5 years. ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा जो है इलिनो है. इलिनो क्या है? चेंज ऑफ वाटर स्ट्रीम. गल्फ ऑफ पेरू, देयर इज द हॉट वाटर स्ट्रीम एंड द कोल्ड वाटर स्ट्रीम. इफ देयर इज द हॉट वाटर स्ट्रीम, the specific year will have a better monsoon in India. But the very same time, if the coast of Peru have cold water stream, that will have very big monsoon in India. ठीक है, that is called El Nino. ठीक है, it is a periodic change in cold and hot water stream. A periodic change है, a cold and hot water stream.
चलिए, तो ये था हमारा मैकेनिज्म स्टूडेंट्स दैट इफेक्ट द मानसून इन इंडिया. ठीक है. Monsoon refers to a season in which the wind system reverses completely. This phenomenon was first noticed in historic times by the sailors who came to India. The reversal of the wind system helped the sailors and cooling of land and water. This creates low pressure on the land mass of India, while high pressure is created over the seas around during daytime. This is reversed during the night time. The second condition is the shift in the position of Intertropical Convergence Zone, ITCZ. In summer, the equatorial trough that is normally positioned about 5 degrees north of the equator moves over the Ganga plain. As a result, a monsoon trough is created during the monsoon season. The third condition is the presence of the high pressure area that develops east of Madagascar. It is approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. The intensity and position of this high pressure area affects the Indian monsoon. The fourth condition develops during the summer. The Tibetan Plateau gets intensely heated, resulting in strong vertical air currents and high pressure over the plateau, about 9 kilometers above in the summer due to the movement of the westerly jet streams to the north of the Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream over the Indian peninsula. Normally, when the tropical East and South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical Eastern Indian Ocean experiences low pressure. However, in certain years, there is a reversal in the pressure conditions. As a result, Eastern Pacific has lower pressure in comparison to Eastern Indian Ocean. This periodic change in pressure conditions is known as the Southern Oscillation, or SO. The intensity of the monsoons can be predicted by computing the difference in pressure over Tahiti in the Pacific Ocean, 18 degrees south or 149 degrees west, and Darwin in northern Australia, in the Indian Ocean, 12 degrees 30 minutes south or 131 degrees east. Negative pressure differences would mean below average and late monsoons. The Southern Oscillation is connected to El Nino, which is a warm ocean current that flows past the Peruvian coast. It flows every 2 to 5 years in place of the cold Peruvian current. The phenomenon is therefore referred to as ENSO, El Nino Southern Oscillations. In India, the monsoon begins early in June and ends in mid-September. It lasts
for 100 to 120 days. अब देखिए मानसून के अराइवल का। तो देखिए मानसून हमने क्या बताया स्टूडेंट, दिस इज द रिवर्सल ऑफ विंड। रिवर्सल ऑफ विंड, ये जस्ट हवा रिवर्स कर जाता है। हमने बताया था आपको प्रेशर, यूनिक प्रेशर ऑफ विंड प्रेशर ऑफ इंडिया, यूनिक विंड प्रेशर ऑफ इंडिया। There we have discussed that how air get reverse from sea to land and land to sea, and that is called monsoon, reversal of wind students। ठीक है, तो मानसून इज पुल सेटिंग इन नेचर। मानसून क्या है कि पुल सेटिंग इन नेचर है। पुल सेटिंग का मतलब क्या समझते हैं, हैविंग नो ए डिफिनिट डायरेक्शन, जहाँ पे कोई डिफिनिट डायरेक्शन नहीं है, दैट इज कॉल्ड द पुल सेटिंग। ठीक है, तो मानसून स्टूडेंट्स यूजुअली अराइव इन इंडिया इन फर्स्ट वीक ऑफ जून टू द कोस्ट ऑफ केरल। ठीक है, एंड देयर इज अ व्हाट इज द सिम्पटम, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ अराइवल ऑफ मानसून। इंडिकेशन क्या है, देयर इज द कंटिन्यूअस रेनफॉल फॉर 3 or 4 days। There is the continuous rainfall for 3 or 4 days, that is called the monsoon burst and cause a heavy rainfall about 400 centimeter। ठीक है, तो फर्स्ट वीक स्टूडेंट्स इट अराइव टू द केरल एंड स्टूडेंट्स गो फॉरवर्ड टू द मुंबई बाय द मिड जून। ठीक है, एंड बाय कोलाइडिंग विद द अरावली विच इज लोकेटेड एट द राजस्थान, इट डाइवर्टेड टुवर्ड द ईस्ट। ठीक है, एंड इन मिड जुलाई वेरी सेम टाइम, देखिए हमने आपको पहले बताया था कि ड्यू टू द पेनिसुलर शेप ऑफ इंडिया, भारत का आप दक्षिणी हिस्सा देखिए तो पेनिसुलर है, तो ड्यू टू द पेनिसुलर मीन्स पार्ट ऑफ इंडिया स्टूडेंट्स, मानसून डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांच। मानसून 2 ब्रांच में हो जाता है, एक साउथ वेस्ट, ठीक है, जो अरब सागर से जाती है ना, एक साउथ ईस्ट जो इंडियन ओशन से जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून केरल तट पर आता है और साउथ ईस्ट मानसून है ना हमारा नागा हिल वगैरह जो है मेघालय वगैरह वहाँ तक जाता है, और वो हिल से टकरा के वेस्ट की तरफ जाती है और ये अरावली से टकरा के ईस्ट की तरफ जाता है। और इन मिड जुलाई स्टूडेंट्स ओवर द दिल्ली कह सकते हैं आप या नॉर्दर्न प्लेन कर सकते हैं, इट मेक ए कन्वर्जेंस, और ये कन्वर्जेंस बनाता है। ठीक है, तो व्हेन एवर ए कन्वर्जेंस इज फॉर्म्ड, ए ट्रफ वुड बी फॉर्म स्टूडेंट्स। जब भी कन्वर्जेंस होगा दो अपोजिट ईयर का तो एक ट्रफ बनेगा, यहाँ भी ट्रफ बनता है, विच बी कॉल्ड मानसून ट्रफ। ठीक है, दैट काउज ड्राई एंड वेट स्पेल, ड्राई एंड वेट स्पेल। ठीक है ना, ये ट्रफ क्या होता है ना, हैव ए नेचर स्टूडेंट्स टू पुल नॉर्थ टू साउथ, ये उत्तर और दक्षिण की तरफ घूमता है हमारा जो मतलब ट्रफ है। ठीक है, तो अगर उत्तरी मैदान में ट्रफ है स्टूडेंट्स, दैट विल काउज ए हैवी रेनफॉल इन नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया एंड द वेरी सेम टाइम इट स्टूडेंट्स गोज टू द हिमालयन बेल्ट, और ये फिर धीरे ऊपर उठ जाता है हिमालयन के तरफ, हिमालय की तरफ चला जाता है। तो इन दैट केस नॉर्दर्न प्लेन विल हैव ए ड्राई स्पेल। तो इस स्थिति में नॉर्दर्न प्लेन में क्या होगा, ड्राई स्पेल होगा, वर्षा नहीं होगी, पहाड़ों की तरफ वर्षा होगी। एंड वंस अगेन व्हेन इट कम्स टू स्टूडेंट्स नॉर्दर्न प्लेन, फिर एक बार जब नॉर्दर्न प्लेन पे आएगा तो ड्राई स्पेल वुड बी स्टूडेंट्स टू द हिमालय, तो वहाँ पे ड्राई स्पेल हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं अगर क्लिप है तो इसका क्लिप के द्वारा भी हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो एडवांसिंग मानसून है, रिट्रीटिंग मानसून आप ले लीजिए। तो विड्रॉल ऑफ मानसून स्टूडेंट्स इज रादर स्लोअर देन द एडवांसिंग। तो विड्रॉल ऑफ मानसून जो है ना वो स्लो होता है एडवांस की अपेक्षा, एडवांस की अपेक्षा ये स्लो होता है। ठीक है, एंड इट टेक प्लेस फ्रॉम द मंथ ऑफ सितंबर एंड टेक कंप्लीट स्टूडेंट्स दिसंबर टू विड्रॉ मानसून फ्रॉम द लैंड सरफेस, इंडियन लैंड मासेस। और ये 4 महीने में दिसंबर तक जो है ये पूरे लैंड मासेस से मानसून विड्रॉ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए ये मुख्य रूप से हमारा रिवीजन का था। इसके बाद आप सीजन पढ़िएगा, तो हमने उस वीडियो में भी बताया था कि सीजन को समझने की मतलब कोई स्टूडेंट्स ये नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि ठंड के मौसम में हमारे देश में क्या होता है, गर्मी के मौसम में क्या होता है, बस यही तो है। एक यूनिफाइंग बॉन्ड था ऑफ मानसून का कि मानसून कैसे सबको एक करता है, उसमें भी हम आपको बताया था कि देखिए स्टूडेंट्स, मानसून इज कॉल्ड ए यूनिफाइंग बॉन्ड, इट इज बिकॉज दिस इज द मानसून विच मार्क्स बिगिनिंग ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन इंडिया। ऑल द फेस्टिवल of our country is related with the monsoon. ठीक है, this is the only monsoon which students relief from the encouraging heat
ऑफ ऑल द पीपुल लिविंग इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो ये रिवीजन का पॉइंट था स्टूडेंट्स क्लाइमेट का, जिसको हमने एक हफ्ता और लेकर रिवाइज कर दिया। बट इवन दो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू हैव टू कंसल्ट मी। ओके, हैव ए नाइस डे।